Very good morning, dear friends. Myself, Dr. Vikrant Sudhakar Payekar. I am working as an assistant professor in Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar, Palghar. Welcome in the semester 2. In this particular semester also, we are having two papers of chemistry. Chemistry paper 1, which is also having 3 units. Unit 1 will be on the physical chemistry. Unit 2 will be on the inorganic chemistry and unit 3 will be on the organic chemistry. So we will start with first physical chemistry. The first topic is gaseous state. So in this particular session, we are going to see the introductory part regarding the states of matter, and we are going to see the ideal laws which are given by different scientists. So we will see first gaseous state. As we know that matter can exist in the three different states. What are the three different states? Solid, liquid and gases. So as we know that the matter has different physical and chemical properties based upon their specialized conditions. So we can say every particular state is identified by its characteristics physical properties. अगर हम लोग बोलेंगे कि पर्टिकुलर सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली वी नो दैट सॉलिड आर द कंपाउंड विच आर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर. सॉलिड के रूम मेल्टिंग पॉइंट क्या रहते हैं कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहते हैं. अगर हम लोग लिक्विड बोलेंगे, सो लिक्विड्स आर हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर. एंड हैविंग gases are having boiling point below room temperature. So these are the three basic characteristics. If you want to tell the examples, so very good example is the particular thing is that which is exist in solid, gas and liquid. नॉर्मली हम लोग मालूम है कि जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में रहता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे. अगर हम लोग उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में तक ले जाते हैं, सो दैट गेट कन्वर्टेड टू सॉलिड फॉर्म. एंड इफ वी ब्रिंग द सेम टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट. So this is the basic examples where you can easily identify that a particular substance can be a solid, liquid और gas. अगर ये पॉसिबल है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस तीनों स्टेट्स में एक ही कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर रह सकता है, सो इज इट पॉसिबल अंडर स्पेशल कंडीशंस, नॉट एट ऑर्डिनरी कंडीशंस. एज वी नो दैट बेसिकली इफ इज कंसिडर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि सॉलिड उसका जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन रहता है या एमरफस रहता है. सो बेसिकली व्हाट वी कैन से, सॉलिड्स हैव डेफिनेट साइज एंड शेप. सॉलिड्स को डेफिनेट साइज एंड शेप रहता है. इफ़ यू कंसिडर लिक्विड, अगर जो लिक्विड हम लोग जिस कंटेनर में लेते हैं उसका वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है. सो बेसिकली इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. एंड गैसेस के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? गैसेस डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप and definite volume. So it is strongly dependent upon the conditions of pressure, volume and temperature. So gaseous state is very different than the what we can say about solids and liquids. So it is very important to study all these aspects related with the gaseous states. So this is the basic introductory part regarding the gaseous state. अब हम लोग क्या बोलेंगे gaseous state की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज क्या है? हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल चेंज इन प्रेशर कैन लीड टू सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस. अगर हम लोग प्रेशर की कंडीशन चेंजेस करते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता है. हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट? अगर कोई पर्टिकुलर गैस एक कंटेनर में इनक्लोज किया है, सपोज उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम रहेगा सपोज V1. अगर वो गैस को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करें तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज. सो व्हाट वी आर सेइंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेट लाइन दैट pressure lead to significant change in the volume of the gas.
प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. And gases are always occupied total available volume of the container in which it is placed. This is a very important property. As we know that gas molecules does not have a particular shape. They have a very high mobility. वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी मूव होते हैं because there is no as such barriers. So gas आप जो कंटेनर में लोगे उसका वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. सो इट इज़ ऑक्यूपाई टोटल वॉल्यूम. कंटेनर में जितनी जगह रहेंगी उतने जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. देन ऑल गैसेस आर मिसिबल विथ ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन. सो इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? गैसेस मिसिबल रहते एक दूसरे में. हम लोग अगर एयर और एटमॉस्फेयर का अगर एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एयर में n नंबर ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट, but we cannot clearly distinguish here is oxygen, here is nitrogen, here is carbon dioxide. So we cannot identify because they are miscible. So this is a very important property. We should come to know that gases are miscible with each other in all proportion. कितना भी उनका proportion रहे वो miscible रहते हैं. Then the intermolecular distance is very large for the gaseous state. Gaseous state में दो मॉलिक्यूल का जो बीच का डिस्टेंस है उसको इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं. सो इफ यू कंसिडर इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर क्यूब फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस का रहता है तब उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब रहता है. सो दिस इज अ व्हाट वी कैन से द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. गैस मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड very far or apart from each other. They are not closely bound as like a solids and liquids. Then gases के बारे में एक very important property what we can say is that gaseous molecules are having high degree of compressibility. हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उसके साथ साथ गैस मॉलिक्यूल एक्सपांड भी हो सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सो रिमेंबर द गैसेस आर हैविंग compressibility and expansibility also. And they do not have shape and volume. Remember, this is very important characteristic property of gaseous molecule. They do not have definite shape and volume. So this is the thing what we need to remember. As we know that in order to study the different characteristics related with the gaseous molecule, past में बहुत सारे laws बनाए गए हैं जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर एट डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एक्सप्लेन कर सके. यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस. सो बेसिकली हाउ दिस गैसेस लॉज आर इवॉल्व्ड by carrying out number of experiments, and these experiments gives different n number of observations. So based upon these observation the scientists have governed some laws. वो laws हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा रहेगा. So this is called as a ideal gas laws. Most of these laws are independently and based upon the main variable of gaseous state. What are the main variable properties? One is pressure, next one is volume, temperature and amount. So these gaseous laws are depend upon these four basic parameters: pressure, volume, temperature and amount. So let us see first Boyle's law. So Boyle has observed some behavior related with the gas molecules, and based upon that what he state, Boyle's law क्या बताता है देखिए अभी समझो कि at constant temperature for given amount of the gas, at constant temperature for a given amount of the gas, the volume of the gas is inversely proportional to pressure. So at constant temperature हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर टेम्परेचर आप लोग कांस्टेंट रखते तो उसका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के. सो दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय बॉयल्स लॉ. इन्वर्सली मीन्स व्हाट, अपोजिट है एक दूसरे के. अगर एक चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ डिक्रीज होंगी बिकॉज इट इज़ इन डिनोमिनेटर. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट एट constant temperature. What we can say, the volume of the gas varies inversely to its pressure. volume जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के. सो दिस इज अ
gas law which is given by the Boyle's. So remember this particular law, volume is inversely proportional at constant temperature. So what we can say, if you want to remove the proportionality sign, हम लोग कैसे लिख सकते हैं यही स्टेटमेंट को आगे के, we can introduce a constant, that is k is called as a constant. So v is equal to k into 1 by p. This is a k is equal to constant. If we remove this particular pressure term to this side, तो क्या होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू के. लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, पी वी, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट. सो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू. सो दिस इज अ बॉयल्स लॉ व्हाट we can write in the terms of the some derivation. The next law is given by the Charles law. So what Charles law says, at constant pressure for a given amount of the gas, the volume of a gas increases by 1 by 273 ratio of its volume at 0 degree Celsius per degree rise in temperature. क्या लिखा गया है इसमें, देखो ये, अगर आप लोग प्रेशर कांस्टेंट रखते तो जो भी क्वांटिटी ऑफ गैस है तो वॉल्यूम इंक्रीजेस विद इट्स टेम्परेचर. मतलब इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते तो वॉल्यूम और टेम्परेचर वो इंटरडिपेंडेंट है. अगर आप चीज़ इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करना चाहिए. सो मैथमेटिकली वेरी सिंपल स्टेटमेंट व्हाट वी कैन राइट, द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. चार्ल्स लॉ क्या बता गया है, अभी आपको आगे का स्टेटमेंट नहीं ऊपर का कंफ्यूजिंग लगता है, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. अगर आप डिक्रीज करते हैं तो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे. बट व्हाट थिंग इज दैट, द प्रेशर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट विथ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस. So in order to remove the proportionality sign, we can introduce the term k. तो हम लोग अभी क्या बोल सकते हैं, v is equal to k into t. ये k क्या हो गया, अभी constant हो गया. So this is how we can write this particular statement. If you want to remove this particular temperature term to left side, so from numerator it will go to denominator. So volume divided by temperature is equal to constant. So this is also we can write with for the चार्ल्स लॉ के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं. वाइस वर्सा स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चार्ल्स लॉ के बारे में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. देखिए अभी हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट शुड बी वेरिएबल, प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी वेरिएबल. हियर व्हाट इज द केस, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज वेरिएबल. वेरिएबल मतलब क्या, जो बढ़ता होता है, कम होता है, या देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटीज. सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, द प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विथ टेम्परेचर. कैसे लिख सकते हैं कि अगर आप लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का पर्टिकुलर जो डेरिवेशन है वो दो ही पैरामीटर्स के बारे में बोल सकता है. अगर आप तीसरा पैरामीटर कांस्टेंट रखते हैं और दो वेरी करते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग बोल सकते हैं कि चार्ल्स लॉ के बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो एंड प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो दिस इज ऑल्सो वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट टर्म p इज इक्वल टू k इंटू t. नेक्स्ट लॉ, एवोगाड्रो. सो व्हाट एवोगाड्रो सेज, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स. आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ मोल्स वो कंटेनर में या वो फ्लास्क में प्रेजेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट ही सेज, लेट अस सी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स नंबर ऑफ मोल्स. क्या समझा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली volume pressure of the, so volume is directly proportional to the number of moles.
So constant temperature and pressure, these two things are constant. So temperature and pressure is constant. So volume is directly proportional to number of moles. ये तो बात बराबर है कि वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है. सो दिस इज वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट गिवन कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो दीज आर थ्री लॉज व्हाट वी कैन से. अगर हम लोग ये तीनों लॉज, आइडियल लॉज जो है वो अगर कंबाइन करते, सो कैन वी राइट द, लेट अस कंबाइन, ट्राई टू राइट. फर्स्ट लॉ इज बॉयज लॉ. बॉयज लॉ क्या बताता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सो दिस इज अ बॉयज लॉ. नेक्स्ट लॉ इज व्हाट, चार्ल्स लॉ. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो दिस हैज बीन गिवन बाय द चार्ल्स. एंड नेक्स्ट लॉ विच इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. अगर आप ये तीनों इक्वेशन दिखेंगे तो उसका जो लेफ्ट साइड है उस क्वांटिटी कौन सा है, V. सो V इज क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड फॉर थ्री इक्वेशन एंड दीज आर द क्वांटिटीज विच आर चेंजिंग. सो कैन वी राइट कंबाइनली. हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अभी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T डिवाइड बाय P. सो दिस इज इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ NT डिवाइड बाय P. अगर हम लोग प्रेशर टर्म यहाँ पे लेके जाते तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT. प्रेशर यहाँ पे लेके गए. सो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर. अगर आप लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT. सो R इज कॉल्ड एज अ आइडियल गैस कांस्टेंट एंड आपका इक्वेशन हो गया PV इज इक्वल टू nRT. This particular equation is called as a ideal gas equation, and this particular equation you might have studied, you might be knowing in your earlier classes that what is the ideal gas equation, PV is equal to nRT. और आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से मिलता है हमको, आइडियल गैस लॉज से मिलता है. सो विच आर द लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ. इफ यू कंबाइन ऑल दिस थ्री लॉ वी गेट आइडियल गैस इक्वेशन. सो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू nRT. आप लोग को समझ में आएगा कैसे आया. देन विल सी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. वेरी सिंपल थ्योरी विच हैज बीन proposed by the scientist. What way they have said about the gas molecules. Gas is composed of tiny individual minute discrete particles known as molecules. Gas में small molecules रहते हैं which is having definite shape as like a particles. So all the molecules of a gas are identical in every respect. अगर कोई कंटेनर में अगर 100 molecules है तो वो all molecules are having definite mass and size. सब एक मॉलिक्यूल का सेम होगा. ऐसे नहीं होगा कि एक का अलग मास है दूसरे का अलग मास है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो रिमेंबर दिस थिंग. देन एज वी नो दैट गैस मॉलिक्यूल्स are having a being believed that it is having a constant random motion. गैस मॉलिक्यूल कभी भी एक जगह पे शांत नहीं बैठते. That is always moving in a container from one point to another. So what we can say, they are having random motion, and when they move from here to there, there is a possibility that one gas molecule can collide with another molecule, or they might कोलाइड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. कंटेनर के जो वॉल रहते हैं वहाँ पे भी वो बम्बार्ड हो सकते हैं. सो व्हाट वी कैन से, दिस वेलोसिटी इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट. अगर कोई गैस मॉलिक्यूल 100 किलोमीटर्स पर आवर सपोज फॉर एग्जांपल्स अगर मूव होता है तो वो वही स्पीड पे चलता रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि बीच में दूसरा गैस मॉलिक्यूल्स मिलेगा, उस पर टकराएगा, फिर स्पीड स्लो हो जाएगा वापस अगर इट विल मूव. सो इट विल हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स. Then collision of the gas molecules with the container generates a pressure. गैसेस को प्रेशर रहता है. ये हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर पे जब बम्बार्ड होते सो दे एक्सर्ट अ प्रेशर एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. ओके, द साइज ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. साइज ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा रहता है. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. सो दिस इज द पॉइंट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर.
Molecules of a gas do not interact with each other and behaves as a separate entities. There are no intramolecular forces of attraction present among the molecules. दो molecules के बीच में there is a very intermolecular forces of attraction very negligible रहते हैं. And the total energy of the gas molecule is dependent on the absolute temperature of the gas and it is proportional to it. So gas molecules का जो energy है directly related with the temperature. So this is the kinetic theory of gas which tells us about every small aspects that gas molecules are having related with their mass, size, then velocities, then collisions and everything. So go through this particular part, go through the ideal gases laws and kinetic theory of gases, which is very important in order to understand the different concepts related with the gases state. So go through this part. See you in the next session with some another topics from the gases state. Thank you very much.